ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آپ کچھ بات کر لیں گے ملکی سیاست پر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ملکی سیاست میں تو معاملات گڑبڑ رہتے ہیں, لیکن جنگ کے جو معاملات ہیں پچھلے کافی عرصے سے ہم فیس کر رہے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ فتنہ الخوارج کی افغانستان سے جو در اندازی کی کوشش تھی اس کو ناکام بنایا گیا, پھر اس کے بعد 25 دہشت گرد ہلاک بھی کیے گئے. پھر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا بھی بیان تھا کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے, معاملات طے نہیں پاتے, تو پھر افغانستان کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہوگی. پھر کچھ بات کر لیں گے ہم عمران خان سے ریلیٹڈ, کیونکہ سہیل آفریدی کو جب سے انہوں نے سی ایم منتخب کیا ہے اس کے بعد سے ابھی تک کابینہ تشکیل نہیں پائی ہے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی کہ اس ٹائم 7 سے 8 روز گزر چکے تھے, اور اب آپ دیکھیں ویکینڈ کے بعد بھی ہم آج منڈے کو اور ابھی تک کابینہ تشکیل نہیں پائی. بالکل, دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اور انہیں تمام تر ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان پاکستان مسلم لیگ نون سے شیخ روہیل موجود ہیں. شیخ صاحب, تھینک یو سو مچ ہو جانے کا. سب سے پہلے جس طرح غزل نے سٹارٹ کیا فتنہ الخوارج کی بات کیجیے, تو افغانستان سے ان کی در اندازی کا سلسلہ جاری ہے. حالانکہ ایک طرف پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ترکیہ میں بھی قطر میں بھی ہمارے ان سے مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی افغانستان اور افغانستان کے جو خوارجی ہیں ان کی جو کارروائی ہیں پاکستان کے خلاف جاری ہیں. سو کیا سمجھیں, کیا افغانستان کی نیت ٹھیک نہیں ہے پھر, یا افغانستان کا کنٹرول نہیں ہے اپنے پورے علاقے میں؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, بالکل ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن یہ کوئی ایک دن کی خرابی نہیں ہے. آپ ذہن میں رکھیں اس بات, یہ برسوں برس سے خرابی کی گئی. آپ دیکھیں نا, آپ نے ان کو پالا پوسا کھلایا, اللہ کی ذات کھلانے والی ہے, لیکن آپ نے ان کو کھلا کھلا کے اتنا بڑا کر دیا کہ وہ آپ کے گریبان پہ آ گئے. اب دیکھیں نا, جیسے آپ ذرا غور کر رہیے گا, اللہ, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جاول حق صاحب کو خدا ان کو ذریعہ رحمت کرے, جو کچھ انہوں نے کیا اسی کا آپ بیچ بویا ہوا آج کاٹ رہے نا. نہ آپ ان کے معاملے میں مداخلت کرتے, نہ آپ پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو گروی رکھتے, نہ آپ لوگوں کے مسائل میں اپنے آپ کو گراتے. وہ جانتے, ان کا کام جانتا, بھائی نپٹ لیتے خود ہی. آپ نے میں کون خام تھا ایسے ہی اپنے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. سیکٹیرین معاملات یہاں پہ پلم گئے, اور اس کے بعد دہشت گردی روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردی. اور یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. میرا خیال ہے یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا, تاکہ ان کو اپنی اصلیت کا پتہ چل جاتا کہ ان کی اصلیت کیا ہے. مطلب آپ یہ کہنا جی کہ طالبان, بھائی طالبان ہیں کیا؟ وہ طالب کی جمع ہے طالبان. کیا ہمارے ہاں مسلمان نہیں رہتے, یا ہم نمازیں نہیں پڑھتے, یا ہم اللہ اور اللہ کے نبی پہ یقین نہیں رکھتے؟ سب کچھ ہے, لیکن عجیب منطق ہے بھائی. آپ کمال کرتے ہو, یا آپ پال کے ان کو, ہمارے دشمنوں کو پال رہے ہو, پھر یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں. میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, یہاں تو شاید میری عمر اتنی زیادہ ہے کہ مجھے اب اس چیز کا کوئی خوف ڈر نہیں ہے. تو میرے خیال میں تو آپ کے اس سوال کا جواب یہی دوں گا کہ یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. اتنے جنازے اٹھائے آپ لوگوں نے, یار قصور کیا تھا پاکستان کے عوام کا جن کو ناحق شہید کیا گیا؟ بازاروں میں بم مارے گئے ناحق, عورتوں پہ, بچوں پہ, بڑوں پہ, بوڑھوں پہ, جمعے کے روز. مطلب یہ کون سا اسلام ہے یار؟ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ اچھا, اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اونچا کر دینے سے, سر پہ پگڑی باندھ دینے سے اسلام آ جاتا ہے؟ اسلام کو تو آپ کو اندر ہونا چاہیے, آپ کی یہاں پہ ہونا چاہیے. یعنی کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں یار؟ اپنی سمجھ دو. صحیح سر, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ہمارا قصور ہی, کیونکہ ہم نے بارہا مذاکرات کرنے کے حوالے سے کوششیں بھی کی, دعوے وعدے بھی ہوتے رہے, لیکن وہ وفا نہ ہوئے. ہمیشہ سے یہی کہا جاتا رہا کہ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے, لیکن وہ عملی طور پر کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آیا. جس طرح سے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر ہماری طرف سے کھلا اعلان جنگ ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, اب حالات مزید بگڑیں گے؟ نہیں, ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. میں اس کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. یہ سیدھی انگلی سے گھی نکلنے والا نہیں, آپ کو ٹیڑھی کرنی پڑے گی. اور یہ بات یاد رکھیں, اب دنیا میں یہ بات ہے, اخلاق, تہذیب, تمیز کا دور ختم ہو گیا یار. اب آپ اگر کسی کا اخلاق دکھاتے ہیں یا تہذیب دکھاتے ہیں, یا مطلب آپ اس کو اپنی محبت کی بات کرتے ہیں, تو اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈرتا ہے.
डरने वाले के साथ कौन चलता है यार? अब आप देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले, हालांकि आपके सवाल का ये जवाब नहीं है, थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान ने आप पे जेंट्री की, मुंह की खानी पड़ी, और सारी दुनिया आपकी सताइश कर रही, इसलिए कि आपने अपने आप को मजबूत किया। बेशक के ठीक है, इकोनॉमिकली हमारी कमजोरी है, लेकिन आपने, फौज ने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से और आर्म्स के हिसाब से। तो आज भी अगर आप ये कह रहे हैं, तो अगर ये तालिबान अगर सीधी रास्ते पे ना आए, तो यकीन कीजिए, मैं आपको एक बात दुरुस्त कह रहा हूं, पता नहीं, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है कि अफगानिस्तान में सिर्फ एक कौम आबाद नहीं है, वहां पे 20 कौमें हैं, उनका आपस में एक दूसरे के साथ मेरा ख्याल मेल मिलाप नहीं है, और एक दूसरे के साथ दुश्मनी की हद तक है। तो हवा देने की बात है ना, जब भी आप उनको चोट पहुंचाएंगे तो दूसरी फोर्सेस जो है उनके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी कि आप क्यों लोगों के मामले में दखल देते हैं भाई, आप क्यों उनके मुल्क में जाके, इतना सा मुल्क है ना, तुम्हारे पास खाने के लिए है ना, तुम्हारे पास पहनने के लिए है, लोगों के टुकड़ों में तुम फंसते हो, और आंखें इतना दिखाते हैं जैसे दुनिया जहान की सारी जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शेख साहब मुझे साथ ये भी बताइएगा कि अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पे आपको पता है कि भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द भी मौजूद है, और भारत की जो वहाँ पे दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है। इस हवाले से अफगानिस्तान की जो नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट है, उसने भारत को ये तंबीह किया है कि आप इस तरह से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट ना करें। ये तंबीह किस हद तक ख़तरनाक है भारत के लिए, और क्या आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह की हमें और आवाज़ें भी सुनने को मिलेंगी? मैं आपको गुजारिश करूं, इस वक्त हिंदुस्तान का जो वजीर आजम है ना, वो एक इंतहा पसंद हिंदू है, और उस इंतहा पसंद हिंदू का माजी आपके सामने है। उसने हमेशा मुसलमानों के साथ बर्बरियत और जुल्म का रवैया अख्तियार किया। मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही अफगानिस्तान में कैसे मुसलमान है, ये कौन मुसलमान है यार? कोई भी अगर इस्लामिक कंट्री उनके साथ राव रस्म रखती है तो मुझे शर्म आती है इस बात पे, उनको मुसलमान कहते हुए शर्म आती है। क्यों नहीं जाके देखते वहां पे मुसलमानों के साथ क्या रवैया किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया? क्या हैदराबाद का खूनरेजियां भूल गए? क्या आप कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो बर्बरियत और जुल्म और तशद्दुद और जो इसमत जरिया की गई वो आप भूल गए? अपना गौर कीजिए। फिर ऐसे लोगों के साथ, चाहे आपका मफाद भी हो, ऐसे लोगों से राव रस्म रखना तो आपको कुरान भी मना फरमाता है। बिल्कुल। पता नहीं ये किस किस्म के मुसलमान है यार, मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन इस तरह जो पाकिस्तान ने उनके साथ किया है, मेरे ख्याल में अब हिंदुस्तान को एक मतलब सोचना पड़ेगा कि अब वो पाकिस्तान नहीं है जिसको ये समझते थे कि तरने वाला जब चाहेंगे हम पाकिस्तान को हड़प कर जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। अब उनको ये सोचना पड़ेगा, ये बड़ी सीरियसली सोचना पड़ेगा, उनको अपने घर के अंदर भी सोचना पड़ेगा। उनके घर के अंदर 10 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे आज़ादी की जंग जारी है। जरा हवा ही देनी है ना आपने तो उनको सिर्फ एक थोड़ी सी मॉरल सपोर्ट कर रही है। वो वैसे ही हाल होगा जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, वो बाकी में हिंदुस्तान में होगा। और अगर हिंदुस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान कायम रहे, तो इस अवाम को, उसके अवाम को, हिंदुस्तान के अवाम को इस दहशतगर्द से जो उनका वज़ीर आज़म है उससे जान छिड़वानी पड़ेगी। और अगर नहीं तो मेरे ख्याल में अब मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मज़ीद टुकड़े होंगे। अच्छा सर, अभी मकबूजा कश्मीर के हवाले से जिक्र किया तो मुझे याद आया कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब बाकायदा तौर पर जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो पीएम है चौधरी अनवारुल हक, उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने का भी फैसला कर लिया है। और अगर पीपल्स पार्टी वहाँ पर हुकूमत बनाती है तो मैं देख रही थी उनको फिर 27 अरकान की हिमायत दरकार होगी, जबकि तादाद की बात की जाए तो उनकी इस वक्त 17 है, और आसिफ अली जरदारी साहब इसकी मंजूरी भी दे चुके हैं। अब आप लोगों का क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है, क्या फैसला है? आप लोग पीपल्स पार्टी का साथ देंगे या फिर अपोजिशन बेंचेस पर होंगे? ये तो सही है। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, मेरा अपना नज़रिया है कि ये सिलसिला जो ना बंद होना चाहिए।
अगर किसी का मैंडेट है तो उसको उस मैंडेट को पूरा करना चाहिए। तो मैंडेट मिला उसको, अगर उसका पीरियड है तो उस पीरियड को पूरा करना चाहिए। इस किस्म की मेरा ख्याल में अब पता नहीं, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं पॉलिसी मेकर तो हूँ नहीं, और मैं अगर यहाँ बात करूंगा तो मेरी बात कौन सुनेगा? ना आसम जरदारी सुनेगा, ना शहबाज शरीफ सुनेगा। तो मेरे ख्याल में मैं इस मामले में अपनी राय ना ही दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है जिसपे आपको फौरी तौर पे अमल करें। पहले मैं पीपल्स पार्टी के दौर नहीं रहे वहां पे, क्या वहाँ पे दूध की नहरें बह गई थी या क्या वहाँ शहद की नहरें बह गई थी? आजाद कश्मीर में कई दफा पीपल्स पार्टी ठीक हो गया सर, गॉट योर पॉइंट। मुझे केपीके की तरफ भी चलना है क्योंकि हम पहले अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, उसकी भी वो करीब है। मकबूजा कश्मीर से हम आज़ाद कश्मीर आए, तो मुझे ये बताइएगा कि केपी गवर्नमेंट की भी अभी तक हमने देखा है कि एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वज़ीर आला तो मुंतखब हो चुके हैं और वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट नहीं है। सो अभी तक गवर्नमेंट उस तरह से फंक्शनल नज़र नहीं आ रही है। इस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? तो मेरे ख्याल में उसको कबीना की जरूरत भी नहीं है। जैसे इमरान साहब थे ना, उनको भी कबीना की जरूरत है। तो कबीना उनको जब आपने किसी का मशवरा सुनना हो, जब आपने किसी की बात माननी हो, या आप उन लोगों को, ऐसे लोगों को चुने जो लोग हकीकतन में उस सूबे की खिदमत करना चाहते हैं। तो अफरीदी साहब के बयान तो आप सुन ही रहे हैं ना, जिस किस्म के बयान आते हैं उनके। इनसे पहले जब गड्ढापुर थे तो मैं तब भी ये कहता था कि कोई जाके इनके कान में सुझाए, खुदा के लिए आप अब इस सूबे के वज़ीर आला हो। और यही बात मैं इनके लिए कहूंगा कि आप अल्फाज अदा करने से पहले सोचा करें। अगर आप में इतना अक्ल और शौक नहीं है तो कम से कम ऐसे अच्छे समझदार लोग रख लें जो आपको अल्फाज बताएं जिनका चुनाव अच्छा हो। क्या मजाक है दुनिया में, आप मजाक अपना उड़ा रहे हैं कि ये किस किस्म के बयान देते हैं, जो बातें करते हैं, जिस किस्म की, ये मेरी समझ से बाहर है यार। मैं ये समझता हूँ कि इनको अब बालिग हो जाना चाहिए, बड़ी हो गई है, लेकिन अब क्या करें? आप उनका लीडर जो है वो अगर इन बातों से खुश होता है तो लाजमी का तो वो यही बातें करेंगे और क्या करेंगे। और ये आपका ख्याल है कि तहजीब और तमीज और अच्छी बात की वो तबलीग करेंगे? मुमकिन नहीं है। अगर वो खुद अपने आप को दुरुस्त कर लेना तो मेरे ख्याल में बाकी भी उनके जो है ना फॉलोअर्स वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। शेख का बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रोहिल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि प्रिसाइसली हमने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, लेकिन उसके बाद हमने आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो डेवलप हो रही है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट अब डेवलपमेंट से वहाँ से, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि मरकज़ में किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट की इत्तेहादी भी है, वो अब इरादा रखती है कि वहाँ से अनवारुल हक साहब को हटाया जाए। और उसके बाद हमने केपीके की बात की और उन्होंने तो कहा कि केपीके में शायद उनको वज़ारतों की ज़रूरत भी नहीं है। जिस तरह इमरान खान वन मैन आर्मी थे, इसी तरह से सोहेल आफरीदी भी वन मैन आर्मी के तौर पे पूरे सूबे को चला सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के जज्बाती बयानात वो दे रहे हैं उस तरह से लग ये रहा है कि ये शायद कैबिनेट के बगैर ही काम करेंगे। और कैबिनेट देखें, जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सोहेल साहब कह रहे थे कि उनको कैबिनेट की जरूरत नहीं है। अगर कैबिनेट की जरूरत नहीं है, ज़ाहिर है फिर वफाक में भी मसले होंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन किस तरह से होगी। लेकिन बैरिस्टर गोहर ने कहा था कि अगर हमारी कैबिनेट नहीं बनती तो फिर भी हम काम को जारी रखेंगे, वफाक के साथ हमारा राबता रहेगा। लेकिन जाहिर है कुछ मामलात इस तरह के से भी होते हैं हसनैन के, नहीं चल सकते ना फिर। बिल्कुल ऐसे। और शेख साहब ने, मेरे ख्याल रोहिल साहब ने हमें ये भी बताया कि जो हमारे अफगानिस्तान के साथ हालात कशीदा हैं, उसमें अफगानिस्तान को भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि हमने हाल ही में तकरीबन 6-7-8 महीने पहले इंडिया के साथ जंग ली है, और जिस तरह से पूरी दुनिया इस वक्त हमारी पजीराई कर रही है, पूरी दुनिया इस वक्त हमें सराह रही है, वो इसी वजह से सराह रही है कि हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज थी, शायद इंडिया ये समझ रहा था कि हम उसके लिए तब नवाला साबित होंगे और वो आएंगे और अपनी मर्जी के साथ लाहौर में नाश्ता करेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन हमने बड़ा देखा इंडियन मीडिया पे कि उन्होंने लाहौर में पोर्ट बना दी थी, इतनी बुखलाहट में थे कि लाहौर जिसके करीब करीब भी
समंदर नहीं है, उन्होंने वहाँ पे पोर्ट बना दिया, उन्होंने कहा कि लाहौर की पोर्ट पे ये हो रहा है और वो हो रहा है और हमने कब्जा कर लिया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन अभी जिस तरह से आपने भी सवाल किया ना उनसे कि भाई शायद उनका अपना ही कंट्रोल नहीं है उनकी अपनी सरजमीन पर, क्योंकि बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जाहिर है वो आप सब लोग देखते होंगे, उस तरह से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती कि शायद उनका अपना ही कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो बैठकर बात कर चुके हैं, मुज़ाकरात के हवाले से कह भी चुके हैं मुतादिद बार, लेकिन हमेशा नाम आता है तो अफगानिस्तान का आता है, अफगानिस्तान ही दरअंदाजी करता है पाकिस्तान में, और फिर बाद में ये कहा जाता है। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब भी साफ वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि अब भाई मजीद हम नहीं रुकेंगे, अब जो कुछ भी होगा उस पर ऐलान जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मजीद हम प्रोग्राम में भी नहीं रुकेंगे ख़वातीन व ज़ात। और यहाँ पे एक बार शेख साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे साथ शेख रोहेल असगर साहब मौजूद थे। और यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।